इन दोनों चीज़ों के दरमियान जो है दो स्टार्टअप्स हैं. आई स्टार्टेड माय फर्स्ट स्टार्टअप व्हेन आई वाज इन थर्ड ईयर इन यूनिवर्सिटी. हम लोगों ने फ्रीलांसिंग वेबसाइट से शुरू किया, बट इट वाज अ वेरी रेडिकल अप्रोच टू दैट. हम लोग एक इंडिविजुअल फ्रीलांसर के तौर पे नहीं थे. वी प्रेजेंटेड आवरसेल्व्स एज अ कॉर्पोरेट एंटिटी. और हमारा, मैं अभी भी कोट करता हूँ, तो हमारा पहला कॉन्ट्रैक्ट $100 का था, दूसरा 750 का, और तीसरा जो था वो $1500 का था. तो इस तरह करते करते हमारी एग्जीक्यूशन जो थी वो विद इन लाइक 4 months ऑल ऑफ अस हैड टॉप स्पेक्स लैपटॉप्स एंड फोन, जो कि हमें स्पेशली इंपोर्ट करवाने पड़े थे, पाकिस्तान में मिल ही नहीं रहे थे. सो एनीवे, ये थोड़ी सी मैंने शो ऑफ भी मार ली. सो coming to that, one of the most important things that you need to cater for is your presentation. Hamza ne bada acha, whenever he was talking, he was using the word present, present, present. So presentation matters a lot. I must excuse myself for my tardy appearance because it's Sunday, and Hamza caught me off guard. I thought it was on Monday, but here I am. So anyway, before we jump into LinkedIn, Hamza, can you give me sort of a roundabout time of the talk? That how long is it going to be? 30 minutes, right? Yes, approximately 30 minutes. Yeah, so I'm going to boil it down to 20 minutes and try to cover all the aspects, and then we will go on to Q&A, because I want this to be more interactive. If you have any questions, just either compile it, the moderator can compile it, or you can keep on writing it in the chat, and I can just go through it in the end, and then we can address all of them, and we can have an interactive one-to-one as well. All right, so my LinkedIn is here as well as my email ID. The logos that you see here, one is of Anzen. That was my company before I joined Jazz, and before that there is QuadSource. So QuadSource was the one that was working in AR and VR. All right, so let me just start. Resume slideshow. Yes. All right, so one of the things that I would like to do is, rather than just talk about just only the LinkedIn, I would rather encompass it, or rather give you the whole aspect of personal branding and how to actually reach people and how to present yourself, so that आपकी LinkedIn profile is actually sort of one touch point of where everybody would come. It's not the only touch point you need, and आपकी जो बाकी चीजें होती हैं, they are as important as that as well. So सबसे पहले, how to actually start working on the presentation and everything. किस तरह हम LinkedIn की प्रोफाइल को बिल्ड करेंगे, उससे पहले क्या चीजें करनी है. तो मैं थोड़ा सा इधर को भी देख रहा हूँ, बिकॉज दिस इज माय प्राइमरी स्क्रीन एंड दिस इज माय सेकेंडरी स्क्रीन. और जो लोग डेवलपमेंट में, आईटी में, प्लीज गेट अ सेकेंडरी स्क्रीन, इट हेल्प्स अ लॉट. ठीक है, सो कोडिंग का अपना मजा आता है. आई थिंक हमजा नोज दैट. हमजा हैज गॉट 2 स्क्रीन्स, वो इधर उधर देख रहा है. All right, so how to actually start? So सबसे पहले तो आपने ये करना है कि अपनी सारी चीजें जमा करनी है. ठीक है, those people who are in first year, second year, third year, आपने कुछ ना कुछ कॉलेज में किया होगा, बट आप इसको इस तरह देखें. You should consider it like this, that whatever I'm saying, you can start implementing it right now. Those people who are in senior year, they will need to dig up some of their old memories and get this thing out. But let's work on notes, reviews, and recommendations. So I will cover each and every one of them in detail. So सबसे पहले, what you need to do is just get a copy pencil and start making notes of what you have done professionally. ठीक है, इसको दो हिस्सों में जरूर डिवाइड कीजिएगा. वन इज योर करिकुलम बेस्ड और प्रोफेशनल. rather 3 में कर लें. One is curriculum based, one is professional, and third is your extracurricular, right? So इसको जब आप CV में करें, जब आप LinkedIn में करें, these 3 things will always be separate. ठीक है, so you don't need to muddle it. अगर आप किसी सोसाइटी के डायरेक्टर हैं, तो that should not go into a professional achievement, right? Just is an extracurricular thing or a plus point in your leadership role, right? So ये चीजें जो हैं आपको देखने की जरूरत है. Okay, so notes के ऊपर अगर मैं आता हूँ, so let me just go back onto my screen. You can see कि मैंने जिस वक्त LinkedIn की अपनी प्रोफाइल बनाई थी, so how many notes I have taken. So ignore these things, these are not the notes. Can you still see? I don't want to show the text that I've written, but just overall the quantity of it. So आपने ये करना है, you have to make sure that each, each and every project that you have done,
आपने किसी जगह इंटर्नशिप किया, उस इंटर्नशिप में क्या काम किया, उसको आपने जस्ट नोट इट डाउन फर्स्ट. दिस वन ऑडियंस मेंबर, कैन यू काइंडली म्यूट देम? एको आ रही है थोड़ी सी. ओके, सो आपने ये करना है कि Ishan, you're mute. I think सॉरी, by वो all गलती किया से हो था. गया. Okay. Okay, so what I was saying is कि note taking would be very important. मेरे पास इस वक्त 3-4 notebooks हैं. If you don't want physical notes, you can go to OneNote. OneNote makes it very easy to organize yourself and make sure कि आप links भी डाल सकें, आप अपनी पिछली चीजें भी डाल सकें. If you have done a project, because let's suppose if I give an example, because I'm an Astian, I know that from background. कि NUST के अंदर there's Shell Eco Marathon, right? They take the car all the way to race and then bring it back. If you have done work in that, you will have some pictures, you will have some notes, you will have some any contribution that you have done to a project, you will note it down. मैं एकेडमिक प्रोजेक्ट्स की बात नहीं कर रहा. दोज पीपल हु आर इन फास्ट विल नो कि हर कोई पैकमैन बनाता है, उसकी बात नहीं कर रहा. इफ यू हैव डन समथिंग रियली अमेजिंग कि आपने वीआर में कर लिया वो पैकमैन, देन एड इट इन, ठीक है. बट डोंट पुट योर एकेडमिक स्टफ ओवर हियर. What I want you to do is कि आपने अपनी तमाम achievements, कभी कोई talk भी हो, for example, Hamza is right now giving talks on GitHub, so that can really contribute to his professional profile as well. कि being a GitHub campus ambassador, being in DC, Google Student Club, and then later on actually making sure that the knowledge that he has gained is going on in talks. So that shows not only community work, but as sort of a leadership role as well. So notes की बात आ गई. So you need to make sure that you write everything down and cover everything as much as possible. Wait a second. Okay. So back to the slides. Just a second. Let me fix this. I don't want to use the present view. Can you still see the slides? All right. Yes, sir. Okay. So नोट्स लें, बैठें अपने कोलिग्स के साथ, अपनी तमाम अचीवमेंट्स को नोट डाउन करें, उसको एक दफा लोगों को दिखाएं कि यार ये चीजें मैंने डालनी हैं. Gather some critique, especially from a professional, especially somebody who has been in the job market or in the freelance market or even in the consultancy department for like 2 to 3 years, so that those people who have already shortlisted or made some teams, they will know कि यार what should be there in a profile that will always attract a professional person towards you. Professional हो सकता है आप अपनी एक corporate entity बनाना चाह रहे हो, so you need to make sure that your profile is impressive and you need to cover everything as much as possible. All right, pictures of your profile, projects जो आपने की हो. Let's suppose if you are a UX designer या UI designer, the pictures will talk a lot more than just only मैंने एक mobile app बनाई, ठीक है. Can we show you these notes to other people in order to get the feedback? Yes, यही मैं कह रहा हूँ that you need to show these notes to other people, especially the professionals. मैं सबसे पहले अपना बाजी के पास जाता होता था, फिर उसके बाद में जाके बाकी चीजों को भी दिखाता होता था कि ये मैंने अपनी प्रोफाइल बनानी है. So what do you recommend about it? So you can do the same. It's all up to you. Who you trust in your mentorship circle, you should show them कि यार this is how I want to present myself online. Those people who actually know this kind of a thing. अगर let's suppose if your parents are not well versed with the LinkedIn and all those things, so it won't be of use. So you need to get somebody who is well versed in these things, a recruiter maybe, and then you can show it to them. Okay, so pics of the project, they are really important, and especially videos. If you are working in UI UX, if you are working in let's suppose Hamza has given a talk, so my talk is being recorded. I would really love if this is put on YouTube and this will contribute to my profile, that yes, I've been, rather than just only working in my own sector, I've been doing counseling session as well as community work and etc. So make sure that all of these things. Lastly, reviews of your work. If you have done an internship, if you have done a project with somebody externally, if you have even made a logo for someone, gather their review in a professional manner. Let's suppose, अच्छा अब review के तरीके क्या है? Review के तरीके जो अच्छा वाला है वो तो ये कि you send them an email and ask them कि I want a review on my work and keep that email saved.
वो भी मैं बताऊंगा किस तरह करना है, ठीक है. So that whenever you have to present yourself somewhere and you have to send your profile to somebody, it doesn't have to be just a single page CV. Sometimes they do ask those people you have worked with, can we get in touch with them? So you just forward them these emails, right? So I have got 1 or 2 emails from my previous work, and I can share them as easy and conveniently as possible whenever I want to show that yes, I've been working professionally in different domains. So reviews, they show your work, how you are, and how best you can integrate into a team as well. So make sure that you get your reviews. अब reviews में HOD का review ना लेना भाई, ठीक है? So make sure कि you get a review from either the boss you have worked with or either somebody you have delivered a freelance project to, ठीक है? So HOD, Dean, ये वाले reviews ना लेना, ये चलते हैं academic वाले scene में, ठीक है? How do you decide if the review is constructive or not? भाई अगर आपने काम सही किया होगा तो constructive review आ जाएगा, but you can ask them to revise or you can give them a certain guidelines. Let me show you if I can. I have requested somebody for a review. Yeah. So here you go. I sent you a request for recommendation on LinkedIn. You can add me experience in Ants and Wars, how I was as a manager, what opportunities there, and my positive and negative influences. Anything you would have to add on how working with me changed your perspective. Okay. So how products were developed and my role as manager, commercial requirements into technical. Looking forward to it. So this is one way you can just request, feed them the information that you want out of them, basically. Okay. So this is just one way. Okay. यार ये स्लाइड स्विच करना जो है ना थोड़ा सा मुश्किल काम है. Let me just minimize it this time. Okay. So recommendations, again reviews तो आपके वर्क के ऊपर हो गए. Recommendations में you can go with your professional recommendations, especially with the bosses, right? Reviews आपके काम के होने चाहिए, recommendation आपके bosses की होनी चाहिए. Again a पर्ची, simple पर्ची can do a lot of things. अच्छा, recommendations में एक और चीज, whenever you are applying somewhere, आप if you are from a tier 1 or tier 2 university, let's suppose Beria, ComSarts, NASPAS वगैरह वगैरह, ठीक है, wherever you are, you will always have an alumni network, ठीक है? आपके बहुत सारे लोग आपसे पहले ग्रेजुएट कर गए हैं, आप पहले बैच नहीं है, ठीक है? 10-15 साल से ये सीन चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं फिक्स ही हुए होंगे. और इस चीज की बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि आप जहां पे जा रहे हैं या आप जहां पे अप्लाई कर रहे हैं वहां पे आपकी यूनिवर्सिटी का कोई ना कोई बंदा बैठा हो. नस्ट फास्ट और कॉमसेट वाले तो हर जगह बैठे हुए ना, मतलब इसमें तो कोई मसला ही नहीं है, ठीक है? 10 लोगों को करो, एक में से अप्लाई कर देगा, ठीक है? उसको कहो यार मैं अप्लाई कर रहा हूँ, recommend me. Most of the organizations have got an internal recommendation system. ठीक है, आप जितनी मर्जी लाखों उसके ऊपर सीवी अपनी डालते रहे, लेकिन अंदर से कोई जब तक नहीं भेजेगा ना तब तक आपको जॉब नहीं मिलेगी या तब तक आपको कोई कंसल्टिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा. सो मेक श्योर यू नो द पीपल. ठीक है, अपने अलुमनाई नेटवर्क को अभी से यूज करना शुरू कर दें, स्पेशली दोज पीपल हु आर इन फर्स्ट एंड सेकंड ईयर. स्टार्ट एडिंग पीपल इन फेसबुक, लिंक्डइन, and start interacting with them, start attending their talks. अगर वो कहीं प्रोफेशनल मैनर में कहीं टॉक्स वगैरह दे रहे हैं, just have a talk with them. So ये चीजें आपको करनी है, ठीक है? ओके, अब हम आते हैं, आपने सारी चीजें अपनी गैदर करना शुरू कर दी, ठीक है? अपनी सारे प्रोफेशनल प्रोफाइल्स गैदर कर ली, रिकमेंडेशंस गैदर कर ली, उनको एक जगह पे कंपाइल कर लिया, एंड नाउ व्हाट टू डू विद इट. सो अब आपने जो है ना अपनी प्रोफाइल के ऊपर थोड़ा सा ध्यान शुरू करना है, ठीक है? सो सबसे पहले आपने अपना नाम सही करना है, ठीक है? उसके बाद ईमेल, फोन नंबर और लिंक्डइन और ये सारी चीजें. सो लेट मी गो बैक टू नेम की मैंने स्लाइड नहीं बनाई हुई. सो सबसे पहले आपने अपना नाम सही करना है. Is it true that if an insider recommends you, then the company skips the coding rounds and goes straight to the HR? Not necessarily. उनका जो अपना due HR process है वो follow करेंगी, ठीक है? सो बट आपकी रिकमेंडेशन अगर इंटरनली आएगी तो वो मतलब वो इट जस्ट पुट्स यू इन फ्रंट ऑफ द क्यू. यू हैव टू गो थ्रू द होल प्रोसेस बट इट पुट्स यू इन फ्रंट ऑफ द क्यू. ओके, सो सबसे पहले हम नाम के ऊपर आते हैं. आई डोंट नो इफ द वीडियो विल प्ले और नॉट, बट आई वुड रियली लाइक यू टू सी दिस वीडियो. लेट मी नो इफ यू कैन हियर द ऑडियो. No, audio is not. No, I think the audio only plays. Yeah, the audio I think मेरे ख्याल से सिर्फ टैब्स की चलती है मीट में, बट सबको पता लग गया होगा. But let me just share this tab then. Let me just share this tab. Stop presenting.
a tab. So here you go. Yeah. Now can you hear me? बताते बताते गोवा पहुंच जाएगा. Yes, now it's perfect. Yeah. Myself Manav Srivastava. ये Aditya Srivastava. आदि. And your good name please. आइए. वेणुगोपाल अय्यर. वेणुगोपाल अय्यर. परमपील परमदूर चिन्न स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर. त्रिचुपल्ली यक्के परमपील परमदूर चिन्न स्वामी मुत्तु स्वामी चिन्न स्वामी. Just put it on 1.5. రాజాడూరు చిన్నస్వామి ముత్తుస్వామి వేణుగోపాల అయ్య శ్రీపరవరణ అట్టపట్టు జయసూర్య లక్ష్మణ శ్రీరామకృష్ణ శివ వెంకట రాజశేఖర శ్రీనివాసన తిరుపతి ఏక పరమపీల పరమదూర చిన్నస్వామి ముత్తుస్వామి వేణుగోపాల అయ్యరా. So you get the point, right? Just select two names for you. First name and last name. Not more than that. ठीक है? Exactly. So you get the point that name should only be two, your first name and last name, क्योंकि internationally this is the standard. ठीक है? So let me go back to the so नाम आपने वो वाला रख लिया, ठीक है? रोहान मोहंती, right? So just keep two of the names, क्योंकि the more the names you put in, the more problem it gives to the person who is going to address you, especially in the international domain. So they won't know what is your first name and what is your last name and how to address you properly. तो वो थोड़ी सी awkwardness हो जाती है. Just two names always. अब हम आते हैं ईमेल के ऊपर, ठीक है? सो ईमेल के अंदर आपने वो वाला ईमेल नहीं यूज करना है जिसका पासवर्ड आपने अपना सबसे पहला क्रश का नाम रखा था, ठीक है? और यूनिवर्सिटी ईमेल बिल्कुल भी ना इस्तेमाल करें, क्योंकि आपको नहीं पता, आप MIT और स्टैनफोर्ड में तो है नहीं कि पीछे से कभी प्लग खींच दिया उन्होंने, ठीक है? सो मसले हो जाएंगे. इस पे हम अभी आते हैं और आगे, ठीक है? अच्छा, फोन नंबर में आपने वो मजदूरों वाला काम नहीं करना कि 4-5 सिमें रखी हुई हैं, ठीक है? और जब दिल करता है एक सिम लगाई, दूसरे को उतार दिया, 2 लगा ली, 4 लगा ली, और वो वाला काम तो बिल्कुल नहीं करना कि एक ओप्पो का मोबाइल रख लिया जिसके अंदर चारों की चारों सिमें चले. एक नंबर रखें, उसी को इस्तेमाल करें. मैक्सिमम ऑफ 2 व्हेन यू हैव अ प्रोफेशनल थिंग, ठीक है? अब आपने ये करना है कि एक आपकी सिम तो जो अभी पर्सनल में चल रही है वो चल रही है. जब आप किसी जॉब में चले जाएंगे, हो सकता है इफ यू वर्क फॉर अ रेप्यूटेड कंपनी, दे गिव यू अ नंबर, especially in Pakistan. If they don't, get another SIM and that will be your professional SIM. When you are leaving the organization, आप अपनी गुड बाय ईमेल में लिख देंगे, भाई ये वाला नंबर बंद हो जाएगा, आप प्लीज जो है ना मुझे अपने पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, और वो वाला नंबर फिर आप ऑफ कर दें जब तक कि आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाके वो नहीं देते. सो सिमें चेंज नहीं करनी. आई माइट बी पासिंग ऑफ अ रेसिस्ट कमेंट, लेकिन पठान भाइयों की तरह रेस वो सिमें निकाल के दूसरी नहीं डालनी, ठीक है? ओके, एक नंबर हमेशा चलाएं. मेरा अभी तक वही नंबर है जो आई थिंक मेरे पास O लेवल में मैंने लिया था, ठीक है? सो वही नंबर चल रहा है. अच्छा, लिंक्डइन में बी अ प्रोफेशनल अबाउट इट. व्हाई डिड आई क्रॉस द प्रो? बिकॉज आपने पूरा वर्ड यूज करना है, ठीक है? दैट शोज प्रोफेशनलिज्म. पोर्टफोलियो के ऊपर हम आ जाते हैं. जितनी आपने सारी चीजें अपनी गैदर कर ली हैं, स्पेशली फॉर CS एंड IT पीपल, यू कैन मेक GitHub प्रोफाइल. मेक श्योर कि आपने जो कोडिंग प्रोजेक्ट्स किए हैं वो वहां पे आ जाए. अब वो जो पैकमैन वाला आपने प्रोजेक्ट किया होता है ना, वो भी बेशक यहाँ पे डाल लें, लोगों को पता हो ना हो. इसका एक बड़ा जबरदस्त तरीका है, which I can share to first and second year students who are sitting over here. है थोड़ा सा मतलब controversial, but let's suppose कि आप GitHub पे डालें और लोगों के कहें यहाँ से रिपोजिटरी ले लेना,
वो जिन्होंने छापे मारने हैं वो आपकी प्रोफाइल अप करते रहेंगे बाय नंबर ऑफ डाउनलोड्स, ठीक है। सो आई मीन इट्स अ हैक, बट मेक श्योर कि आपकी ऑनलाइन पोर्टफोलियो जो है ना, या ऑनलाइन जो प्रोफाइल है वो एक अच्छे तरीके से नजर आ रही है, ठीक है। सो गेटहब के अंदर आ गई, आपके कमिट्स जो होते हैं, आपके डाउनलोड्स जो होते हैं, आई डोंट रिमेंबर द टेक्निकल टर्म फॉर इट, आई थिंक कमिट्स होते हैं, राइट हम सब? यस, कमिट्स। द नंबर ऑफ, एक और मुझे ये बताओ इस चीज को क्या कहते हैं कि द पुल्स, हाँ, द नंबर ऑफ टाइम द पीपल विल यूज योर कोड, पुल्स एंड पुश, पुल्स एंड पुशेस, ठीक है। तो यू नीड टू मेक श्योर कि वो जो एक चार्ट नजर आ रहा होता है उसके अंदर ग्रीन जो है वो शेडेड ज्यादा नजर आए। फोक्स भी, यस यू कैन डू फोकिंग एज वेल, अगर आपने कोई ऐसी जबरदस्त काम कर लिया जो कि लोग फोक आउट कर रहे हैं तो क्या ही बात है। सो वो देख लें, ठीक है। So you need to make sure कि ये if you are working in UI, UX or even videography, you can go on to Behance, you can go on to Dribbble. मैं अभी I'm currently pursuing a course in Google UX design. So they are very strongly recommending Dribbble and Behance. Dribbble and Behance की environment थोड़ी different है, मतलब one is Twitter, one is Facebook, but you need to make sure कि your portfolio is there. One other thing that I can recommend really greatly is कि आपने अपनी पूरी असाइनमेंट तो बनानी होती है ना, उसके छापा तो मारना होता है, वो जो किताबी काम करना होता है, ठीक है। सो अगर आपने वो लिखना ही है, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा इस तरह लिख लें, उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर लें, थोड़ी सी इनफॉर्मल कर लें कि वो आप मीडियम के ऊपर एक आर्टिकल डाल सकें। आपने पैकमैन बनाई, आपका एक्सपीरियंस क्या क्या, आपने कहाँ से कोड ढूंढा, कहाँ से एक्सपर्टीज ली, कौन सा आइडिया यूनिक था विच सेट्स योर पैकमैन अपार्ट फ्रॉम अदर। लेट्स सपोज कि आप बैठे बैठे आपने कोडिंग स्टार्ट किया, आपने कहा यार ये तो बोरिंग है, I would rather do it in VR, और let's suppose मैं इसकी वेब एप्लीकेशन बना लेता हूँ, या मैं इसको इस तरह कर लेता हूँ कि the more the number of people play, उसका बैक एंड जो डेटा है वो मेरे पास एक न्यूरल नेट में ट्रेनिंग के लिए यूज हो जाए। सो ये कुछ चीजें हैं जो कि आप कर सकते हैं which will enhance your profile, especially those people who are in second or third year, they can use this to their full advantage and make sure कि उनका ऑनलाइन पोर्टफोलियो बन जाए। क्योंकि देखिए जब भी आपकी एक सीवी जाती है इन पीडीएफ फॉर्मेट, पेपर में नहीं जाती, उसके बाद जो लिंक्डइन प्रोफाइल है और जो आपकी पोर्टफोलियो प्रोफाइल है वो दोनों वहां पे होनी चाहिए। जिस बंदे ने डिटेल देखनी है किसी भी काम की, वो आपकी इन दोनों प्रोफाइल को देख लेगा। अगर वो टेक्निकल बंदा है तो वो हमेशा आपके पोर्टफोलियो प्रोफाइल के ऊपर बी एट योर गिटहब, Behance, Dribbble, जो भी आपके डोमेन से रिलेटेड प्रोफाइल है, ठीक है। आई डोंट नो अबाउट एम्बेडेड सिस्टम्स, वो कहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन यू कैन, आई एम श्योर यू कैन पुट इट। ये चीजें होगी। और लेट्स सपोज अगर कोई रिक्रूटर है तो वो हमेशा आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाएगा, वो की टर्म्स को देखेगा, क्योंकि लिंक्डइन जो रिक्रूटर होगा उसको नहीं पता होगा इतना कि आप सीएस में, एआई में क्या काम कर रहे हैं, आप न्यूरल नेट की टाइप में कितने लेयर्स लगा रहे हैं। वो सिर्फ ये देखेगा एआई न्यूरल नेट, हाँ जी ठीक है पास करो इसको, ठीक है। सो ये चीजें आपने देखनी होती हैं। यूज रिकमेंडेड प्लेटफॉर्म, अगेन जो भी आपकी डोमेन से रिलेटेड प्लेटफॉर्म है उसको आपने इस्तेमाल। अच्छा, वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं। वेबसाइट इज अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग। आपकी अपनी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट जरूर होनी चाहिए है, इन विच यू प्रेजेंट योरसेल्फ द वे यू वांट अदर पीपल टू नो अबाउट यू, ठीक है। एक तो आपने लिंक्डइन कर लिया, नेक्स्ट इज योर ऑनलाइन पोर्टफोलियो, एंड थर्ड इज योर वेबसाइट। ऑल ऑफ देम शुड बी सॉर्ट ऑफ लिंक्ड, ठीक है। कोहेजन होनी चाहिए। ये नहीं होगा कि यहाँ पे जो है ना आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और उधर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अच्छा, इसको किस तरह फ्री में गूगल क्लाउड और AWS पे डिप्लॉय करें, वो बड़ा आसान सा तरीका है। हमजा ने आपको बता दिया, आप गिटहब पे जाएं, आपको फ्री डोमेन वैसे मिल जाएंगे 2, ठीक है। सो इसका मतलब है यू आर कवर्ड फॉर 1 ईयर। 1 ईयर के बाद आप मेरे ख्याल में इतना कमा रहे होंगे कि आप 2000 रुपया साल का दे दें कि आपका डोमेन एक्टिव रहे, ठीक है। सो ये चीजें होंगी। आई एम स्टिल वर्किंग ऑन माई वेबसाइट बाय द वे। बाकी प्रोफाइल जो है वो मेरी थोड़ी सी सेट हुई हुई है। सोशल मीडिया, अच्छा, सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा ख्याल रखना है आपने इफ यू वांट टू स्पेशली वर्क फॉर tier 1 इंटरनेशनल कंपनी। आई एम टॉकिंग माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, आई एम टॉकिंग फेसबुक, दे विल गो थ्रू योर सोशल मीडिया, ठीक है। और अनबायस्ड रहें वहां पे। पहले तो सबसे ये करें ना, सारा कुछ उठा के फ्रेंड्स ओनली में डाल दें, और फ्रेंड्स जो होंगे वो अपनी बड़ी केयरफुली सेलेक्ट करें, ठीक है। उनको जो आपकी स्क्रीनशॉट लेके इधर उधर पोस्ट कर सके उनको निकाल दें, या उनको एक अलग लिस्ट में रखें। हेट फ्री रखें, ठीक है। किसी की बेइज्जती करनी है तो उसको पब्लिकली ना करें, उसको कमेंट्स में ना करें, उसको इनबॉक्स में जाके करें, ठीक है। और इसको सिक्योर जरूर रखें, ये ना हो कि आपका हैक हुआ और फिर कोई ना कोई आपकी जगह पोस्ट कर दे, क्योंकि यूनिवर्सिटी में लोग ये करते हैं अपनी में वो फेसबुक चेक करेंगे या जो भी है। अब तो खैर मोबाइल काफी ज्यादा कॉमन हो गया, हमारे जमाने में यही होता था। अच्छा,
खैर सो मेक श्योर कि आपका सोशल मीडिया सिक्योर भी रहे, क्योंकि लोग यूनिवर्सिटी वाले कंप्यूटर्स के ऊपर चेक कर रहे होते हैं। मैं अगर अब होता तो सिंपल एक की लॉगर लगा के छोड़ देता, फिर देखता क्या होता। ओके, सो ये चीज आगे सोशल मीडिया के ऊपर। अच्छा, टूल्स एंड ट्रिक्स के ऊपर आते हैं, ठीक है। सो लेट मी सी, जस्ट अ सेकंड, व्हाई डू आई प्रेस एस्केप? sorry. Okay, so ऑर्गेनाइजेशन तो आपने कर ली, ठीक है। आपने सारी दुनिया अपनी कंपाइल करना शुरू कर दी है, अपनी वन नोट के अंदर कर लें। गूगल कीप यूज कर सकते हैं, ठीक है। गूगल कीप लेट्स यू टेक स्मॉल नोट्स। आपको कोई जहन में चीज चाहिए, जस्ट टाइप इट ऑन योर फोन एज वेल, ठीक है, और जल्दी से आपने वो चीज कर ली। देन यू हैव गॉट योर गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स इज रियली impressive if you know how to use it, especially those who are working in a university environment. Let me give you a very good example that I heard of. I don't know, काफी नेट पे चल रही होती है, but one of the primary example was कि there was a high school in US. उन लोगों ने ये किया कि because all of them used to have Chromebooks or access to mobile and everything, जिस वक्त लेक्चर चल रहा होता था, they used to have a common Google Doc, और they used to have 2 or 3 moderators जो कि उसमें टाइपिंग कर रहे होते थे नोट्स, जो कि वहां पे प्रोफेसर पढ़ा रहा होता था, ठीक है। सो वंस दैट इज डन, तो उसमें फायदा ये होता था कि इट वाज अ वन कॉम्प्रिहेंसिव नोट, ठीक है, जो कि तमाम क्लास उसमें कंट्रीब्यूट करी। इफ समबडी हैड अ क्वेश्चन कि यार हम ये वाली चीज मुझे समझ नहीं आई, वो वहीं पे कमेंट में लिख देता था कोई और, उसको रिप्लाई कर देता होता था। एंड दैट्स हाउ दे यूज्ड टू मेक नोट्स फॉर देम। वो जो फोटोकॉपी के पास जाते होते हैं ना कि यार फलाने बंदे का छापा दे दे, तो वो वाला काम नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यू कैन मेक योर ओन वेरी कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, ठीक है। अच्छा, देयर इज अ क्वेश्चन, सोशल मीडिया नेसेसरी? आई फाइंड इट वेरी डिस्ट्रैक्टिंग। सो हाँ, दैट्स टोटली अप टू यू, इट्स पर्सनल। सोशल मीडिया का कहीं ना कहीं फाइनल मतलब यूज हो जाता होता है। बोथ ऑफ माय कंपनी स्टार्टेड ऑन सोशल मीडिया। ट्विटर वाज, एयरबीएनबी वाज स्टार्टेड विद अ ट्वीट। एक और कंपनी थी, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, टेस्ला नहीं थी, कोई और थी। एयरबीएनबी का तो आई नो, इट जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम अ ट्वीट। किसी बंदे ने कहा था कि यार हम ये काम कर रहे हैं, इफ somebody wants to invest in it, just let us know. And the guy who bought the shares in Airbnb and took it to the height that it is right now, he just saw that and said inbox me the whole thing. So Facebook कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाता था। हाँ, ये सेशनल ऐसे ही देते हैं। अब सेशनल ऑनलाइन चल रहे हैं तो इसी तरह देंगे ना, आप क्या करें। मैं अगर सेशनल डिजाइन कर रहा होता तो इस तरह का देता कि आप लोग चीटिंग नहीं कर सकते, पूरा इंटरनेट लगा के भी, ठीक है। सो ये चीजें, वैसे मैं सोच रहा हूँ बड़ा सीरियसली कि एकेडेमिया में आना चाहिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। ओके, सो गूगल डॉक्स की मैंने आपको एग्जांपल दे दी। अच्छा, एक्सेल, ट्रेलो एंड असाना, दीज आर टूल्स दैट विल हेल्प यू इन प्रोजेक्ट ट्रैकिंग। प्रोजेक्ट ट्रैकिंग आपको क्यों करनी है? क्योंकि अभी शायद आपके अभी तो बल्कि लोड होता है, जिसको अगर आप अभी से अपनी हैबिट बना लें कि आपने अपनी असाइनमेंट्स को ट्रैक करना है, अपने प्रोजेक्ट्स को ट्रैक करना है, सो आपको प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जाके बड़े आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेट मी सी इफ आई हैव दैट, लेट मी स्टॉप द शेयरिंग एंड लेट मी सी इफ आई हैव माय प्रोजेक्ट ट्रैकर विद मी। project plans, these are project plans. I'm really sorry, I just had this project tracker in my, yeah, so let me share the screen again. So just a second. So this is sort of a project tracker that we used to do in Jazz, right? So this is a personal level thing. This is what I made for my own self, so that मैं अपने तमाम projects जो हमारे चल रहे हैं, ये आपके पास project threads हैं, ठीक है? So उनकी तमाम details मेरे पास है। मुझे पता है project title क्या है, उसमें कौन कौन से लोग involved हैं, किस department से कौन सा involved है, उसमें documents अगर कोई हैं, let's suppose किसी ने कोई business requirement document दिया हुआ है, किसी ने कोई, लेट्स सपोज जैसा आपके पास आएगा कि असाइनमेंट की पूरी वो डिटेल जो है वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप लिंक अप कर दें। ईमेल, अगर आप बहुत सारी ईमेल्स ट्रैक कर रहे हैं तो उसका सब्जेक्ट, क्योंकि हमारे पास लिटरली
दिस वाज अ न्यू थिंग फॉर मी इन कॉर्पोरेट। दिन की तकरीबन 2500 ईमेल्स आपके इनबॉक्स से गुजर रही होती हैं क्योंकि आपका उसमें काम नहीं होता। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी जो प्रोजेक्ट की ईमेल्स हैं वो ट्रैक हो रही हैं। और फिर लोगों को आप ये कहते होते हैं कि भाई इसी ईमेल में जो कुछ बोलना है वही बोलना है, कहीं और बोलोगे तो हमें नहीं सुनाई देगा। सो ईमेल सब्जेक्ट्स आपने रखे होते हैं, उसका स्टेटस इस वक्त क्या चल रहा है। लेट्स सपोज आप असाइनमेंट कर रहे हैं, ग्रुप असाइनमेंट है, स्टेटस आप डाल दें अगले बंदे के ऊपर हमने डाला हुआ है और वो काम नहीं कर रहा। सो ये चीज डाल सकते हैं। नेक्स्ट माइलस्टोन उसका क्या है, प्रोफेसर को सबमिट करवानी है। ठीक है, तमाम माइलस्टोन क्या है, हमने लिखना है, हमने सोचना है, हमने चाय पीनी है और हमने असाइनमेंट करनी है और उसके बाद प्रोफेसर को देनी है। स्टार्ट डेट क्या है, एंड डेट क्या है, बल्कि नेक्स्ट माइलस्टोन क्या है और एंड डेट क्या है। अच्छा, ये कमेंट्स के अंदर मैं ये चीजें कर रहा हूँ कि क्या क्या चीजें होती रहती हैं कि लेट्स सपोज फर्स्ट मीटिंग हुई, उसके बाद रिक्वायरमेंट्स हुई, उसके बाद हमने स्पेसिफिक्स डाले। अब लेट्स सपोज कि मैंने अपनी असाइनमेंट कर ली है, ठीक है, शिफ्ट सेल्स डाउन, मैं यहाँ पे कर दूंगा सबमिट दी असाइनमेंट। ठीक है, सो मुझे पता है कि लास्ट स्टेटस ये था कि सबमिट हो गई थी, उसके मार्क्स शार्क्स लगने हैं और उसके बाद मैं कैरी ऑन कर सकता हूँ। सो आई यूज्ड टू हैव दिस ट्रैकर विद मी ऑन स्क्रीन पे एक पे लगा होता था। सो मुझे ये फायदा होता था कि मैं हर प्रोजेक्ट के ऊपर देखी जा रहा होता था और जो काम मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी मैं उसको कर रहा होता था और जो किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको मैं फॉलो अप जरूर कर रहा था। ठीक है, सो एवरीथिंग वाज इन फ्रंट ऑफ मी। दिस इज वन ऑफ द वेज दैट आई यूज्ड टू डू इट। एक और मेरे पास यहाँ पे चेकलिस्ट होती है। सो आई डोंट नो इफ यू कैन सी, सो दिस इज माय चेकलिस्ट। ठीक है, सो चेकलिस्ट का सिर्फ फायदा यही होता है कि एवरी टाइम मतलब मैंने कोई टास्क खत्म किया, आई विल जस्ट गो ओवर माय चेकलिस्ट, ओके ये यार ये वाला काम अभी कर लेते हैं। ठीक है, so checklist, be organized, be very organized. The more organized you are, the better it will be for you. Okay, ये तो हो गया ये वाली चीज। आई थिंक हम थोड़ा सा लिंक्डइन पे आना शुरू करते हैं। ट्रेलो मैं इसको यहाँ पे डाल लेता हूँ बल्कि, यू डोंट नीड टू सी द नोट्स। ठीक है, ट्रेलो और असाना भी इसी तरह की चीजों के लिए यूज होती हैं। गूगल पिक्स इज वेरी गुड। आपकी जितनी भी मोबाइल की पिक्स होती हैं वो अब खैर जुलाई में तो दे विल स्टार्ट चार्जिंग यू टुवर्ड्स द स्टोरेज ऑफ गूगल ड्राइव, बट अभी तक जितनी भी पिक्स मेरी हैं मतलब व्हाट्सएप की मीम से लेके सारी दुनिया वहां पे पड़ी हुई है एंड यू कैन एक्चुअली सर्च देम। लेट्स सपोज कि आपको ढूंढना है कोड की स्क्रीनशॉट। ठीक है, सो यू राइट कोड स्क्रीनशॉट, वो सारी कोड की जितनी स्क्रीनशॉट्स होंगी गूगल पिक्स के अंदर वो ले आएगा, चाहे आपने वो व्हाट्सएप के ऊपर भेजी थी चाहे आपने खुद ली थी। देन यू कैन सॉर्ट इट आउट विद द डेट और वहां पे जाके आप नैरो डाउन कर सकते हैं। सो ये चीज हो गई। पोर्टफोलियो पे आ जाते हैं। पोर्टफोलियो पे तो हमारी बात हो गई थी। ओके 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 ओके, सो लेट मी गेट डाउन टू द लिंक्डइन पार्ट। सो लिंक्डइन के लिए जिस तरह मैंने आपको कहा, सो लेट मी जस्ट मिनिमाइज दिस एंड या सबसे पहले एक प्रोफेशनल अकाउंट बना लें। अब्दुल हामिद साहब का हम बना रहे हैं। ठीक है, सिर्फ यही दो नाम है, अब्दुल हामिद खान उनका पूरा नाम है लेकिन हम खान नहीं यूज कर रहे। ठीक है, सो उसके आगे अब अब्दुल हामिद साहब का ईमेल आईडी नहीं बन रहा था। ठीक है, तो हमने उसके आगे फील्ड डाल लिया, लेट्स सपोज CSIT जो भी है। अगर वो भी नहीं बन रहा तो कोई एक रैंडम नंबर डाल लें जो आपको मतलब याद हो, लेट्स सपोज टाइम ऑफ योर बर्थ। ठीक है, सो डेट ऑफ योर बर्थ और समथिंग लाइक दैट, समथिंग ATM की पिन कोड ना डालना, बस बाकी सब कुछ ठीक है। ओके, सो पासवर्ड नॉट माई एक्सेस नेम, शो पासवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट। सो वी विल मेक दिस, व्हाई डू यू नीड अ फोन नंबर? ओके, लेट मी जस्ट पुट इन माइन। Just so you know, they will send you the verification code on your phone number. So your account Yeah, आपको not an issue. So what I can do is I can do it off the screen so that you don't record my phone number. Just a second, let me grab my phone. Yeah, I got my code. The reason I wanted to do this in front of the audience is so that you could actually see कि ईमेल जो है वो किस तरह का एक प्रोफेशनल बनाना है। ये ना हो कि फिर दोबारा आप सारे चीजों पर कबाड़ा कर दें एक फजूल सा ईमेल बना के। 5 4 6 just a second.
भाई ईमेल तक ले जा। Yes, yes, you can track me. All right, so hopefully now I can take me to the email. क्योंकि इसके बाद मैं LinkedIn के ऊपर थोड़ा सा like 15-20 minutes I will spend on it, and I will go to my LinkedIn as well ताकि वो भी मैं कर सकूं. So let me just see. Okay, so turn on blah blah blah. Yeah. Shush. Okay, got it. So ये हो गया ये sign in. No, I don't want to sign in. Wait. I want to sign up. Join now. Join with Google. So Abdul Hamid साहब का हम account use करेंगे. We can set up not my ex's name. Team join. Let's do a quick security check. Phone number मांगेंगे मेरे phone में most probably. हाँ ठीक है. Yeah. All right. हाँ ठीक है. बड़ी अच्छी बात है. So this location of yours will sort of give you the job details जो कि उस region की होंगी. So make sure कि ये चीज आप सही fill करें. If you want to work in America, so make sure you put in US. Most recent job title. I would have put in Vela हूँ, लेकिन let's do something else. Most recent job title. Let's put in manager. Associate. क्योंकि आप start ही यहाँ से करते हैं. Employment type, full-time employment, most recent company, my dad's company. Okay, make sure you tag your company wherever you're working in. Okay, select an industry. I don't know. पाकिस्तान में आजकल property development चल रही है. Real estate? No, not railroad manufacturer. Real estate, yes. Okay. Which I could have clicked. Not now. ठीक है. Blah blah blah. हाँ ठीक है. Oh, sorry. Skip. So वो जो प्रोफेशनल ईमेल होगी ना, उसमें आपने वो एक्स वाले पासवर्ड वाले ईमेल से इंपोर्ट कर लीजिएगा, ठीक है. और फिर उसके बाद जो है ना आप वो कर लीजिए. अच्छा, सो लेट्स टॉक अबाउट फोटोज. ठीक है, लेट्स ऐड अ फोटो. सो फोटो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एंड मेक श्योर कि आप जो है वो एक प्रोफेशनल पिक्चर सिलेक्ट करें, ना कि शादी वाली. ठीक है, क्योंकि सूट हम शादियों पे पहनते हैं. वही जो आपने शादी पे सूट पहना था उसको निकालें, दीवार आपके पास अवेलेबल होती है, उसके ऊपर किसी से कहें कि शादी वाली अच्छी है भाई, किसी से DSLR ले ले, नहीं है तो मोबाइल पे सेल्फी अच्छी खींच ले भाई. 300 रुपए का स्टैंड मिलता है मोबाइल का, वो ले लो. ठीक है, उसको रख के उसके ऊपर टाइमर लगा के दीवार के ऊपर शक्ल अपनी करके जबरदस्त कह दें एक पे. एग्जैक्टली. ठीक है, और उससे डिजिटल जो है वो ईमेल करवा लें. अगर फोटोग्राफर के पास जाते हैं उससे डिजिटल ईमेल कर लें, वो 100 रुपए की बना देगा यार. ठीक है, अगर टाइम नहीं है तो मोबाइल से किसी से कहीं यार ले ले. अच्छा, सो अ प्रोफेशनल पिक्चर विद द स्माइल माइनस द टीथ. ये नहीं करना, कोलगेट का इश्तेहार नहीं बनना. ठीक है, सो और शादी वाला जोड़ा नहीं पहनना. ठीक है, सूट्स की भी डिफरेंट किस्में होती हैं. टक्सीडोज आर अ नो and a good suit is a good, yes. ठीक है, good formal suit. So you open that up. You can zoom in a bit. Make sure half से ऊपर. ठीक है, and you straighten it. थोड़ा सा देखो कर लेते हैं. भाई साहब दीवार के साथ टंगे हुए हैं. Not a good picture, but okay. So filter नहीं लगाने. ठीक है, maximum you can do is black and white. उससे ज्यादा कोई filter नहीं लगाना. ठीक है, ये ना डॉगी फिल्टर के साथ पिक्चर अपलोड कर रहे हो, मिलेनियल्स का कोई एतबार नहीं. ओके, कंटिन्यू.
कंट्री रीजन कैप, आई डोंट वांट द लिंक्डइन की ऐप कर लें तो बहुत जिंदगी आसान हो जाती है। ठीक है, फॉलोइंग या फिनिश, फाइनली वी आर हियर। अच्छा, अगर मैं अपनी प्रोफाइल पे जाता हूँ, सबसे पहले आपने ये करना है कि अपनी कवर फोटो लगानी है, राइट। कवर फोटो क्यों लगानी है? बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स हु यू आर एज अ पर्सन। ठीक है, पर्सनल ब्रांड की जो एक इमेज होती है वो आपको हमेशा अपने सामने रखनी है। लेट मी शेयर माय लिंक्डइन हियर इफ आई कैन। ओके, सो अपेरेंटली वो इनकॉग्निटो मोड में जो है वो मुझे चलाना चाहिए था, ये वाला लिंक्डइन, क्योंकि ये इसको साइन आउट ना करते। Yeah, okay. So here is my LinkedIn. So as you can see, I have put a quotation. ठीक है? So this shows me as a product designer कि मैं किस तरह की product बनाना चाहता हूँ. So you can put in something that you really like or you want to go forward with. ठीक है, सो ये चीजें होगी। ओके, नेक्स्ट कम्स आपका नाम आ गया, ये इस पे हमने काफी बहस मुबाहिसा कर लिया है। आपकी करंट ऑर्गेनाइजेशन और आपकी यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उससे आप अपने बाकी अलमनाई से कनेक्ट हो गए होते हैं। सेकंड इज योर टाइटल। सो आप जब भी किसी लिंक्डइन के पेज पे जाएंगे तो आपका ये टाइटल हमेशा यहाँ पे नजर आ रहा होगा। वो किसी ने चैट में अभी लिखा हुआ था, किधर गया, एक सेकेंड। हाँ, नॉट येट वर्किंग, आई एम स्टिल स्टडिंग, ये वाली टैगलाइन नहीं डालनी यहाँ पे। ठीक है, और वो भी कैप्स लॉक ऊपर नीचे करके। सो मेक श्योर योर टैगलाइन इज सीरियस। ओके, गोइंग बैक टू दैट। ठीक है, कॉन्टैक्ट इन्फो बहुत जरूरी है। कॉन्टैक्ट इन्फो में आपका लिंक्डइन आ गया, वेबसाइट आ गई। ठीक है, फोन नंबर अगेन सॉरी आ गया है, कोई बात नहीं, माई बर्थडे एंड एवरीथिंग। ठीक है, ये चीजें आ गई। कॉन्टैक्ट इन्फो इसलिए जरूरी है सो दैट पीपल कैन एक्चुअली रीच आउट एंड अगर उनको कोई चीज आपसे पूछनी है और वो वाली चीज। ठीक है, उसके बाद अबाउट वाली चीज, ये जो आपने लिंक्डइन में नोट्स बनाए, सॉरी वन नोट में जो नोट्स बनाए थे ना, ये अब यहाँ पे काम आएंगे। यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी वो समरी आ रही हो आपकी एक पर्सनल ब्रांड की एज वेल एज योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, कि आप क्या हैं, क्या करना चाहते हैं, किस तरह करना चाहते हैं। ठीक है, वो एक सीवी पे ना हम ऑब्जेक्टिव लिखते होते हैं, वैसे तो ऑब्जेक्टिव सीवी का ये होता है भाई मुझे जॉब दो, मैंने पैसे कमाने हैं। वो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ठूंसे, सीवी पे काम नहीं करता, वो यहाँ पे काम करता है। ठीक है, सो जब भी रिक्रूटर आएगा वो सबसे पहले यहाँ पे आएगा और ये चीज पढ़ेगा कि आप किस किस टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीजें कर रहे हैं। ठीक है, फीचर्ड मैंने अभी कोई ऐसा मार्का नहीं मारा जो मैं फीचर कर सकूं, लेकिन चलो मैं कर दूंगा कुछ ना कुछ, मैंने अभी ये डाली नहीं है फीचर्ड चीज। ठीक है, सो ये चीज आ गई, मेरी करंट एक्टिविटी आ गई। सो यहाँ पे आ गया, कोई रेसिस्ट कमेंट आएगा वो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा, सो डोंट डू इट। ठीक है, उसके बाद आपका ये एक्सपीरियंस वाली चीज आ गई। अब एक्सपीरियंस के अंदर व्हाट यू कैन डू इज, सबसे पहले तो आपने ये डालना है आपने कहाँ पे काम किया। फॉर दोज हु हैव वर्कड विद इंटर्नशिप, वो इंटर्नशिप वाली डालें। प्रोजेक्ट्स की एक अलग कैटेगरी होती है यहाँ पे, इफ यू गो डाउन भाई, ओके नेवर माइंड। सो ये चीज आ गई, आपका एक्सपीरियंस, आपने क्या क्या चीजें की हैं। यू कैन शेयर योर वीडियोस, यू कैन शेयर योर प्रेजेंटेशंस ओवर हियर। वो जो पैकमैन बनाई थी उसकी जो आपने असाइनमेंट सबमिट करवाई थी, वो अगर आप चाहते हैं बड़े गलत तरीके से अगर आप डालना ही चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है, सो ये चीज आ गई, प्रोडक्ट मैनेजर आ गया, नीचे आपने बाकी सारी चीजें कर ली। ठीक है, सो यहाँ पे आपकी एजुकेशन आ गई, आपने किस वक्त क्या किया था। अच्छा, ये जो इसकी डिग्रीज एंड वो वाली चीजें होती हैं, मेक श्योर ये लिंक्डइन की अपनी वाली डालें, ना कि अपनी मर्जी की। ठीक है, ताकि वो उसकी की टर्म्स के साथ लॉक हो, सो दैट योर प्रोफाइल इज सर्चेबल। अभी भी कोई अगर मैकेट्रॉनिक सर्च करेगा, प्रोडक्ट मैनेजर सर्च करेगा, तो मेरा प्रोफाइल वहां पे आ जाएगी, बिकॉज कि मैंने ये की टर्म्स यूज किए। ठीक है, लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन, लिंक्डइन के ऊपर मैं कुछ चीजें कर रहा था, पेड लिंक्डइन ले लें, उसका 2 महीने का ट्रायल होता है, जान मार दें, सारी चीजें यहाँ पे डाल दें। ठीक है, अच्छा, स्किल्स एंड एंडोर्समेंट्स, ये जो होती हैं ये आप कोशिश करें, वैसे लोग तो भाई भाई कह के अपने सारे दोस्त रिश्तेदारों से करवा लेते हैं, लेकिन कोशिश करें कि एंडोर्समेंट्स जो है ना वो अपने बॉसेस वगैरह से लें। सेम गोज फॉर योर रिकमेंडेशंस। ठीक है, अब ये 2 मेरे स्टाफ मेंबर्स की थी, वन इज फ्रॉम माय कस्टमर। ठीक है, सो यू वांट टू मेक श्योर कि आप जिस तरह की प्रोजेक्शन करना चाह रहे हैं अपनी, उस तरह के रिव्यूज आपके पास हों। फॉर एग्जांपल, मैं अपने आप को एज अ टीम बिल्डर शो करना चाह रहा था या एज अ मैनेजर शो करना चाह रहा था, तो मैंने अपनी टीम के रिव्यूज ज्यादा लिए हैं।
ठीक है, या एज अ प्रोडक्ट डिजाइनर शो करना चाह रहा था कि मेरी प्रोडक्ट एक अच्छी है, सो आई टुक वन ऑफ माय कस्टमर रिव्यूज। ठीक है, सो आपको जो चीज आपकी डोमेन में ज्यादा बेहतर Ishan, you're mute. सॉरी आई गॉट कट ऑफ, आई थिंक नेट को कोई इशू हो गया था एकदम। सो एनीवे आई वाज सेइंग कि आपने जो भी रिकमेंडेशंस हैं बेस्ड ऑन व्हाटएवर प्रोफाइल टाइप ऑफ प्रोफाइल दैट यू वांट टू बिल्ड, आप उस तरह की रिकमेंडेशंस वो वहां पे डालेंगे। ठीक है, सो ये चीजें आ गई, इंटरेस्ट आ गए और ये सारी चीजें। सो आपने जितना काम अपना किया हुआ है वो गैदरिंग वाले पोर्शन को मैंने इसीलिए इतना स्ट्रेस किया था और प्रोफाइल की चीजों को इतना स्ट्रेस किया था, क्योंकि जब आप वो सारी चीजें कर लेंगे, सेटिंग अप योर लिंक्डइन प्रोफाइल वुड बी वेरी इजी। ठीक है, अच्छा एक और चीज मैं जिस पे करना चाहता हूँ वो ये है कि आपने जो काम किया हुआ है उसको आपने किस तरह प्रेजेंट करना है। ठीक है, सो लिंक्डइन पे यू कैन गो ऑल आउट, सीवी पे थोड़ा छोटे काम करने होते हैं। सो एक स्ट्रैटेजी होती है स्टार टेक्निक, जस्ट नोट दिस डाउन, स्टार स्ट्रैटेजी। Our method, okay, so what it stands for is situation, task, activity and result. आपने अपनी जितनी वो करनी है ना, गुफ्तगू करनी है या आपने जो चीज प्रेजेंट करनी है वो इस तरह करनी है। मैं किस सिचुएशन में था, मेरे पास क्या टास्क था, ठीक है, उसके अराउंड मैंने क्या एक्टिविटीज परफॉर्म की और उसके क्या रिजल्ट्स निकले। ठीक है, मैं अपनी एग्जांपल देती, तो हमने एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम डिप्लॉय करना है, उसके टास्क क्या है कि मैंने बाकी सारे शेयर होल्डर से कोलैबोरेट करना है और जो लोग जो इस डोमेन में काम कर रहे हैं उनकी सारों की कोटेशंस लेनी है, उनको सारों को कोलैबोरेट करना है और एंड में प्रेजेंटेशन बनानी है। इसकी एक्टिविटी ये परफॉर्म की गई थी कि मेरे पास 12 से 15 या 20 कंपनीज आई जिन्होंने अपने सोल्यूशन प्रेजेंट किए, हमने शॉर्ट लिस्ट किए, ब्ला ब्ला स्कोरिंग क्राइटेरिया, और रिजल्ट ये बना के हमने बेस्ट कंपनी जो थी बेस्ट प्राइस में वो शॉर्ट लिस्ट करी। ये चीज आप सीवी पे डालेंगे ना इन अ वेरी कॉन्साइज 1 सेंटेंस और 2 सेंटेंस, दैट्स इट। वो जब बंदा पढ़ेगा वो कहेगा यार हाँ इसने सारा काम किया हुआ है, एंड दैट मेक्स टॉकिंग मैटर फॉर योर इंटरव्यू एज वेल। बेशक वो आप फ्रीलांस के तौर पे कर रहे हैं या किसी और तरह करें, मेक श्योर कि आप क्या सिचुएशन में थे, आपने क्या करना था और उसको किस तरह आपने अकॉम्प्लिश किया, ये आप जरूर डालें। ठीक है, सो आई होप लेट मी कंक्लूड दिस, चीजें पता चल गई होंगी एंड यू नो you can and you will try कि आपकी प्रोफाइल अब थोड़ी सी बेहतर हो जाए। Let me go on to questions if there are any, so you can put it in the chat. मेरी पिछली chat उड़ गई हुई है because we got disconnected, but if you have any question you can put it in the chat and I can address them. If the moderator would like to take audio questions, I can do that as well. People can raise their hands. Sure. If anyone has question, put in the chat or raise your hand. CV वर्सेस लिंक्डइन, यार CV आपको चाहिए, लिंक्डइन भी आपको चाहिए। CV आप भिजवाते हैं, लिंक्डइन आपकी वहां पे ही होती है। ठीक है, आप ये कभी नहीं करते कि अपनी जॉब पे लिंक्डइन का एक लिंक भेज देंगे, आपको एक CV तो भिजवानी पड़ेगी ना। सो उसके ऊपर आप लिंक्डइन का लिंक दे दें। हाँ, अब CV जो होगी वो जो जितने मैंने आपको नोट्स और वो सारी चीजें गैदर करने का कहा है, उसके बाद आप जो है वो उसको जब आप शॉर्टलिस्ट करेंगे तो CV should be like around 10% of your notes and LinkedIn can be like around 80% of it. CV should be very short. मैंने अपना there are two things, हाँ, there's resume and there's CV. Resume is your short thing. CV stands for curriculum vitae, which means life story. ठीक है, उसमें आप जरा ज्यादा लंबा कर सकते हैं, बट बीइंग अ स्टूडेंट या बीइंग अ अर्ली प्रोफेशनल, जब तक आप मेरे ख्याल में 2-3 साल के प्रोफेशनल नहीं हो जाते, आई डाउटेड कि आपके पास इतना एक्सपीरियंस होगा या आप इतनी कहानियां डालना चाह रहे होंगे कि आप 1 पेज से ऊपर जाएं। सीवी के अच्छे लेआउट्स अवेलेबल होते हैं, यूज दैट।
आई नो फॉर अ फैक्ट कि पूरी फास्ट यूनिवर्सिटी, फास्ट इस्लामाबाद एक लेआउट को फॉलो करती है, वो काफी अच्छा लेआउट है। उसके अंदर कंटेंट आप एक अच्छे तरीके से डालें। मेरी सीवी की टॉक एक अलग रिकॉर्ड हुई यूट्यूब पे पड़ी हुई है, जस्ट सर्च माय नेम एंड सीवी एंड यू कैन हैव अ लिसन टू इट। अच्छा, हाउ टू मेक एन इफेक्टिव प्रोफाइल फॉर अ फ्रीलांसर व्हिच कैन हेल्प यू विन प्रोजेक्ट्स। अच्छा यार, ये एक पूरी सेल स्ट्रैटेजी वाली कहानी आ जाती है इसके अंदर, ठीक है। एक तो ये फ्रीलांसर्स हमेशा जो है वो अपने आप को एज एन इंडिविजुअल शो कर रहे होते हैं, डू नॉट शो योर एज एन इंडिविजुअल। आप अपना एक ब्रांड बनाएं, ठीक है, उस ब्रांड को कैरी फॉरवर्ड करें। बेशक उस ब्रांड के पीछे आप हैं, आपने ये सोचना है कि आफ्टर लाइक इवन 6 months यू माइट हैव टू हायर अ डिजाइनर, यू माइट हैव टू हायर अ कोडर जो कि आपको ऑगमेंट कर रहा हो। सो मेक श्योर कि आप ब्रांड हो। ये नहीं कि मैं अर्शान अनवर हूँ, वो आके अर्शान अनवर से बातें करेंगे और फिर उसके बाद कहेंगे यार ये एक बंदा इससे बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होना, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप एक ब्रांड हो, वो ब्रांड से बात करें, उस ब्रांड के पीछे बेशक आप ही हो उस वक्त, ठीक है, और वो भी आधा टाइम हो, ठीक है। सो मेक श्योर कि ब्रांड हो। सो ये एक सेल स्ट्रैटेजी है। यू कैन जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज इन इनबॉक्स एंड वी कैन हैव अ सेपरेट कन्वर्सेशन। एज अ फ्रेशर शुड आई कोल्ड कॉल रिक्रूटर्स और इज इट स्ट्रिक्टली नो नो? यार डिपेंड्स, अगर आप उसको कॉल करके तंग करेंगे और उसको जानू जानू कहेंगे तो वो मसला करेगा, बट एक प्रोफेशनल तरीके से कॉल करें ठीक है। मतलब इसका एक प्रॉपर तरीका होता है, ठीक है। कोल्ड कॉल का भी एक प्रॉपर तरीका होता है। यू नीड टू बी वेरी प्रोफेशनल अबाउट इट। इवन ऑन लिंक्डइन देयर आर मेनी रिक्रूटर्स, यू कैन जस्ट ड्रॉप देम एन इनबॉक्स मैसेज, बट दैट इनबॉक्स मैसेज शुड बी वेरी केयरफुली कंपोज्ड। सिर्फ ये नहीं करना हाय मुझे एक जॉब चाहिए, ये मेरा सीवी है, ये नहीं करना। उस कंपनी को देखना है वो जॉब हायरिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, रिक्रूटर क्या करता है, उसका बैकग्राउंड क्या है। आप अपनी सारी जार्गन मार दें कि मैं गिटहब पे इतने फोकस करता हूँ, इतने कमिट्स हैं, इतने पुश पुल है, उसको सर पैर भी ना पता हो गिटहब का, उसको ये ना पता हो कि गिटहब होती है, ठीक है। सो यू नीड टू बी वेरी प्रिसाइज एंड पीपल पर्सन इन दैट एस्पेक्ट कि आप किस तरह रिक्रूटर्स को अप्रोच कर रहे हैं, इवन इन अ कोल्ड कॉल। I presume from a cold call you don't need, pick up the phone and call them. Don't do that. Drop your CV, drop a message on LinkedIn, drop an email. We in our company used to get a lot of emails जो कि होती थी CVs, और फिर यही होता था जब उसके अराउंड कोई जॉब आती है, फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू हैव एन एम्बेडेड इंजीनियर विद मी, तो मैं एक दफा वो अपनी ईमेल को जरूर खंगाल लेता होता था कि एम्बेडेड इंजीनियर के लिए लोगों ने जो CVs ड्रॉप किए हैं उसको मैं एक दफा देख लूं, आफ्टर आई हैव गॉन थ्रू ऑल द पीपल हु हैव अगेन अप्लाइड। जो प्रोजेक्ट हम क्लाइंट के लिए बना रहे होते हैं वो क्लाइंट को सबमिट करवाने के बाद अपना गिटहब में कोड पुश करना है, क्या एथिकल है यार, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट एंड यू कैन हैव अ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा हाँ, whoever is working freelance and everything get a contract, ठीक है। every time you push it looks professional, make sure everything is written in a contract, फेज बाय फेज करें, उससे पेमेंट्स लें। ये जो लोग रोने डालते हैं कि हमारी पेमेंट लेके भाग गया, वो इसलिए होता है क्योंकि ना उनको पता होता है कि पेमेंट कब आनी है और ना उसको पता होता है कि पेमेंट कब देनी है, तो फिर दोनों लोग भाग जाते हैं। सो ये चीज, इफ यू आर नॉट अंडर एन NDA यू कैन पुट योर कोड ओवर देयर एंड यू कैन हैव अ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप स्पेसिफिकली लिख सकते हैं कि विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द इंटेग्रिटी ऑफ देयर डेटा और देयर आइडेंटिटी, I would like to use this code as a showcase of my abilities to work in certain domain. इस तरह करके कोई एक लाइन आप डाल सकते हैं। तो आप जो भी काम उसके लिए कोड प्रोजेक्ट में कर रहे हैं, किसी की असाइनमेंट का छापा ही बेशक बना रहे हैं, वो अरबियों के असाइनमेंट के लोग कर रहे होते हैं, तो वो आप अपने गिटहब पे डाल दें बाद में। उसे कहें यार, मतलब देखें हर प्रोजेक्ट की एक टाइमलाइन होती है। हो सकता है कोई एक आप कोड एप्लीकेशन के लिए, वेब एप्लीकेशन के लिए लिखें जो कि साल के बाद रिडंडेंट हो जाए या उसकी लाइफ ही 6 months हो, तो आप उसे कहें कि यार मैं अभी नहीं डालता है, आफ्टर 6 months आई कैन यूज दैट। अभी आप सिर्फ उसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में करते हैं, और अगर कोई पूछता भी है तो आप कहें यार आई एम अंडर एन NDA, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, आई कैन नॉट शेयर द कोड बट आई कैन टेल यू व्हाट इट वर्कड ऑन, ठीक है। NASSCOM में भी तो लोग काम करते हैं, मिसाइल बनाते हैं, उसके बाद वो जाते ही हैं दूसरी जॉब्स पे, तो बताते ही हैं कि हमने, मतलब वो ये नहीं बताते कि मैंने मिसाइल क्या बनाया था, मिसाइल बनाया था ठीक है। सो ये चीजें होगी। एनी अदर क्वेश्चंस दैट यू हैव गॉट? I think there are none. Thank you so much, Arshiyan. ठीक है, And it was a lovely talk, और हम सबको तो मेरा ख्याल रोजा लगना भूल गया जितना हम हंस रहे तो that's what I try my best कि टॉक में जरा मजा है। बोरिंग सी टॉक देखें, अगर आपको लिंक्डइन की स्क्रीनशॉट्स ही दिखानी है तो फिर फायदा नहीं है, बट आई होप दैट पीपल took some stuff out of it and it
hopes to, I hope that your professional profile will get further in your professional careers. फ्रेशर अपना लिंक्डइन कैसे अच्छा प्रेजेंट कर सकता है? भाई काम करें और क्या कर सकते हैं, काम करें, प्रोजेक्ट जमा करें और वर्क फॉर कम्युनिटी वर्क करें। हमजा को तंग करें, उसे कहें मैंने स्टूडेंट क्लब में आना है, ठीक है, हमें तंग करें कि हमने गूगल के लिए वॉलंटियर करना है, किस तरह करें। व्हेन यू गेट वॉलंटियर वर्क तो आप लोगों से बात करना शुरू करते हैं, जब आप बात करना शुरू करते हैं तो यू गेट अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एज वेल, सो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। ठीक है, ओके ग्रेट। नाउ इट्स टाइम फॉर लिंक्डइन क्विज। तो उस पर यह होगा कि लिंक्डइन आप ये क्विज करेंगे, मैं लिंक डाल रहा हूँ, तो उसके बाद अर्शियान, हमजा, मैं जो डीएससी लीड्स हैं, तो हम आपको हेल्प करेंगे आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल को इम्प्रूव करने में। सो हियर द लिंक, यू हैव 2 to 3 minutes टू फिल इट अप, और उसके बाद फिर हम अगली टॉक की तरफ जाते हैं। Oh, let me see that quiz. That will be a piece of cake for you, to be very Yeah, honest. it's a very simple one. Okay, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन का वैसे आंसर मैंने नहीं दिया अपनी टॉक में, लेकिन चलो, गुड हो गया यार, अच्छा क्वेश्चन हो। So my LinkedIn is here. You can connect with me on LinkedIn. You can drop me a message. Facebook and WhatsApp are also available. ठीक है, मैसेज करना आपका हक है, रिप्लाई करना मेरा राइट है। ठीक है, अगर अच्छा मैसेज होगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। One of the lines that my mentors used to say कि the guys can email me, the girls can call me. ठीक है, so anytime, any query that you have, I'm more than available. I especially take the time out sometimes के जितनी भी लोगों की हेल्प कर सके। देखिए, ये जितनी भी चीजें मैंने शेयर की हैं, they are either based on experience or either some simple Google searches which you can do as well. ठीक है, आपको सिर्फ ये आजकल के दौर में ये बहाना हो ही नहीं सकता कि यार मैं किस तरह करूं, आपको ये पता होना चाहिए आपने क्या करना है, and you can do it. ठीक है, so I hope that was enough for me. So if there are no other questions, please, and comments, I would like to sign off because I have to go and pick somebody up. Yeah, sure. Thank you so much for All your right. talk. Thank you. Allah Hafiz. Hamza, do send me the recording of this. Yeah, sure, it's recording. All right. Thank you, everyone. Thank you. Bye. Okay.